Hello everyone, welcome to your PD and this is Shubhya. So this video is for all the ones who are preparing for HPCL examination. Particularly you see whenever you're preparing for any examination, PYQ does play a very important role. The reason is very simple because it helps us to understand that what are the most important domains through which the questions can pop up in our final examination. Like if I go through the PYQ analysis of the paper that was conducted in 2024 related to branch mechanical, RC was quite, I would say that the vocabulary in RC was little tougher to decode. Second, fill in the blanks were there, jumbled sentences were there, vocabulary portion was there. So here I'll be making a quick analysis of this paper. Also, I would let you know that what are the important rules that you need to understand related to these questions, and whatever the options that are provided in our PYQs, we need to learn those options also, because no one knows that next time, and it has been witnessed that from the options next time the questions do come up, like framing from those particularly MCQs. So let's get started and start with our discussion of PYQ 2024 for the branch mechanical HPCL examination. So the very first is that this is a jumbled set, right? Yeah. So jumbled order, we are being given 1, 2, 3, 4, 5. 5 are there, 5 sentences, and we have to prove, make a meaningful paragraph related to it. Now always remember, whenever it is a jumbled, these natural, in the MECOM basis, they, during the rain season and wetlands. The very important thing you understand is you have to decode the noun. सबसे पहले noun को ढूंढो, कहाँ पे हमें noun मिलता है. कभी भी they से तो first कभी start ही नहीं होगा, ये हमेशा याद रख लो that it is never going to start with they. ठीक है, pronoun से start नहीं होगा. अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ these natural, मतलब ये भी नहीं हो सकता start. मतलब अगर कोई option A से start हो रहा है, C से हो रहा है, वो तो मेरा cancel हो जाएगा, right? तो मेरे पास बचे दो ऑप्शंस, दोनों ही ई और ई से स्टार्ट हो रहे हैं. दिस इज थ्रू एलिमिनेशन मेथड. तो ठीक है, आई टेक दिस एज अ फर्स्ट वन. ई आ गया, उसके बाद भी ई आ गया. अब पढ़ते हैं इसको. Wetlands defined as ecosystems flooded or saturated by water, including floodplains, marshes and mangroves, are vital ecological guardians worldwide. तो चलो, इसमें इन्होंने बताया वेटलैंड्स होते क्या हैं. गुड टू गो. नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? अब वेटलैंड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी. अब वेटलैंड्स के रिलेटेड क्या आएगा? ड्यूरिंग द रेनी सीजन हमें सी दिया गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं. दे सपोर्ट, ठीक है. तो नेक्स्ट में दोनों में सी है, ई सी, ठीक है. तो ये नेक्स्ट आएगा हमारा. दे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, एक्ट एज नेचुरल वाटर फिल्टर्स एंड बफर अगेंस्ट फ्लड्स. ओके, पहले आ गया मीनिंग, सेकेंड आ गया वो कहाँ हेल्प करते हैं. नाउ कम्स द थर्ड वन. थर्ड में यहाँ तो आ रहा है, वो बोल रहे हैं डी पे चले जाओ. ड्यूरिंग रेनी सीजन पावर फ्लडिंग इंजेक्ट्स लाइफ इनटू वास्ट फ्लड प्लेन हैबिटेट्स. लेकिन क्या हमने डिस्कशन की है पावर फ्लडिंग या वास्ट फ्लड प्लेन की? चलिए बी पढ़ते हैं. इन द MECOM basins, the stark difference between dry and wet season river flows magnifies wetlands importance. अब ये है, यहाँ पे एक डिस्कशन खत्म हो रही है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा. अगर मैं करूँ ई और सी का डी का, तो ये लिंकेज की प्रॉब्लम है. यहाँ पे इट इज साइड. तो दिस इज द वे यू नीड टू डिकोड. सबसे पहले जो ऑप्शंस होंगे, सबसे पहले नाउन को ढूंढिए. नाउन जब आपको पता चल जाएगा किसके बारे में डिस्कशन है, फिर लिंक बनाना शुरू करो. एलिमिनेशन मेथड से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लगते हैं उसको कट कर दो, एंड देन मेक श्योर उसके बाद लिंकेज कॉन्टेक्स्ट कर सकते हो आप ड्रॉ, ठीक है. एंड देन यू कैन जस्ट चेक इट आउट हाउ इट इज मूविंग. This will save your time also and help you to decode the answers. Jumbled में more practice और smart work चाहिए. Second आ जाता है idiom के बारे में, right? Idioms आपको कुछ प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, but there is a way to decode. अब है like his father, अपने father जैसा. जयंत is chip of the old block with his interest in computers. अब ऐसा चल रहा है कि जयंत है वो अपने फादर जैसा है, और जैसे उसके फादर को इंटरेस्ट था, जयंत को भी कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है. ये हमें कुछ समझ आ रहा है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. हमेशा याद रखना, नेवर लर्न द इडियम्स, अंडरस्टैंड द इडियम्स. चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. ओल्ड मतलब कोई पुराना है, उसका चिप होना मतलब पार्ट होना, मतलब किसी पुराने पर्सन हो सकता है, पुरानी चीज की रेप्लिका या पार्ट होना. समवन विद रिजिड बिलीफ, नहीं हमें तो कोई बिलीफ के बारे में आ ही नहीं रहा है, नहीं. अ पर्सन इंटरेस्टेड इन लेटेस्ट गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, नो. वेरी सिमिलर इन करेक्टर टू देयर पेरेंट, यूजली ओल्ड फैशन एंड ओल्ड स्कूल. अब जरूरी नहीं है, क्या पता उसका फादर मॉडर्न है, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो मे बी ही इज अ मॉडर्न फ्रीक. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
सी ऑप्शन, वेरी सिमिलर इन करेक्टर टू देयर पेरेंट। अब ये आ गया सिमिलैरिटी आ गया और अपने पेरेंट या जो भी ऊपर पार्ट आ गया, मे बी इट इज एन ऑब्जेक्टिफाइड, मे बी इट इज एन नाउन, जो भी आपको दिया होगा। सो आई होप द सेकेंड वन इज क्लियर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, दैट मीन्स वेरी सिमिलर टू करेक्टर इन करेक्टर टू देयर पेरेंट। थर्ड क्वेश्चन आया आपको स्पेलिंग्स के बेसिस पे। अब आपको एक सेंटेंस ढूंढना है, ये आपको दिया हुआ है, I know a playwright who has a privilege to meet the monarch in solitude। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कहीं पे playwright की स्पेलिंग गलत है, privilege की स्पेलिंग गलत है, monarch I think it is fine and solitude it is fine। तो अब आपको यहाँ पे करेक्शन करनी है। privilege होता है जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, playwright is a person जो प्लेस लिखते हैं। अब आ जाता है आपको क्या चीज़ इसमें डिकोड करोगे, क्या आंसर आएगा इसमें आपका PLAYWRIGHT, this is playwright, and privilege PRIVILEGE, privilege। आप जब याद करो तो आप मोनार्क के स्पेलिंग भी याद करना, MONARCH, एंड सॉलिट्यूड अकेलता में, दैट इज आइसोलेशन, SOLITUDE। मतलब जब भी कोई सेंटेंस को याद करो, इन फ्यूचर स्पेलिंग का कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो मे बी दैट इज पॉसिबल वो इनमें से कोई आपको स्पेलिंग देते, तो आपको वो भी करना है। जैसे यहाँ पे मोनार्क था, इन्होंने ये दिया हुआ है, तो आप गलती नहीं करोगे। सॉलिट्यूड के स्पेलिंग भी आपको एक बार रिवाइज करने हैं इसमें, राइट। सो दिस वॉज रिलेटेड टू थर्ड क्वेश्चन। लेट्स गो विद दिस फोर्थ वन। अब ये आ गया आपको फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन ये आर्टिकल के बेसिस पे है। आर्टिकल के बेसिस पे, टेंसेस के बेसिस पे, प्रेपोजिशन के बेसिस पे नॉर्मली हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, जो ये 3 पोर्शंस में से जरूर आते हैं। लाइक आई विल से सोशल प्रोग्राम्स आर एसेंशियल टू सपोर्ट डैश एल्डरली इन अवर कम्युनिटी। अब देखो, जब हो जाता है ना किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना, कोई फिक्स्ड क्लास है, मैं रिच की बात कर रही हूँ, पुअर की बात कर रही हूँ, एल्डरली की बात कर रही हूँ, सारे एल्डरली को मैं डिनोट कर रही हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगी, एक पर्टिकुलर आर्टिकल दैट इज फिक्स्ड आर्टिकल। और आप लोग को याद होगा ए एंड एन वर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दी वॉज अ डेफिनेट आर्टिकल विच वॉज यूज टू डिनोट समथिंग, टू पर्टिकुलरली रेफर टू समवन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं रेफर्ड किसको कर रही हूँ, एल्डरली को, तो क्या आ जाएगा, दी आ जाएगा। तो फोर्थ का क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। आर्टिकल्स को समझ के करना। फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब ये है थोड़ा सा आपको समझने वाला, दैट व्हाट कैन बी द राइट वर्ड्स रिलेटेड टू दिस सेंटेंस, राइट। अब यहाँ पे आ रहा है द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट। अब लॉयर के आर्ग्यूमेंट की डिस्कशन हो रही है, एंड दे आर सेइंग दैट इट इज जर्मेन, राइट। सो दैट इज जर्मेन टू द केस। अब जर्मन बोल सकते हैं, जर्मेन टू द केस। अब जर्मेन टू द केस आ जाता है, अब लॉयर आर्ग्यूमेंट करेगा तो दैट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली relevant to the case, right? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जर्मेन मीन्स दैट इज द केस इट हैज अ रेलिवेंट फिगर। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करती हूँ, दैट इज समथिंग दैट इज ऑपोजिट टू इट। कि इसका ऑपोजिट क्या आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटल क्या हो जाता है, जो इन्वॉल्व है, कोई चीज है जो एक्टिव है, राइट। अगर मैं एक्टिव की बात करूंगी तो दैट इज इन्वॉल्व, इंस्ट्रूमेंटल। पर्टिनेंट आ जाता है ये भी, टू द पॉइंट, रेलिवेंट। मतलब मुझे तो ये दोनों क्या लग रहे हैं, नियर टू नियर सिमिलर लग रहा है। इंस्ट्रूमेंटल भी हो गया कि उसके पास कुछ हो गया, पर्टिनेंट तो हो ही गया, इसका मतलब रेलिवेंट हो गया। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम मीन्स दैट इज समथिंग ऑपोजिट टू इट। अगर मैं जाती हूँ डेट्रीमेंटल, सो डेट्रीमेंटल ऑल्सो मीन्स दैट इज कॉजिंग हार्म। देखो, जब भी कोई वर्ड डी ई से स्टार्ट आ जाएगा ना, नॉर्मली वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट देगा, लेकिन यहाँ पे हार्मिंग की तो बात हो नहीं रही है, दैट इज कॉजिंग हार्म। अगर मुझे एलिमिनेशन से निकालना होता तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट फिटिंग, मतलब वो शायद, आई वोंट से इट इज एन एग्जैक्ट वन, लेकिन क्लोजर टू इट आ सकता है, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल ही फिट इन नहीं हो रहे हैं, राइट। सो इंसिडेंटल क्या हो जाता है, कोई सेकेंडरी है, कोई अनइम्पॉर्टेंट है, कोई इनएसेंशियल है, कोई चीज है जो निग्लिजिबल है, एक्स्ट्रानियस है, दैट इज इंसिडेंटल, राइट। तो फिफ्थ का ऑप्शन क्या आना चाहिए आपके पास, दैट इज द C1, बिकॉज इट इज वेरी लेस रेलिवेंट टू इट, राइट। तो तीनों ऑप्शंस क्या थे, पर्टिनेंट, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट, डेट्रीमेंटल दैट इज कॉजिंग हार्म टू इट, एंड देन इज इंस्ट्रूमेंटल दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट थिंग, लेकिन इंसिडेंटल दैट इज नॉट एग्जैक्ट एंटोनिम बट नियर टू दैट इज जो उससे रिलेटेड नहीं है, जो कम इंपॉर्टेंट है। तो लॉयर की आर्ग्यूमेंट क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होनी चाहिए। Now come to the sixth question. Select the most appropriate option to fill in the blank. Of all the applicants, Maria's qualifications were the. अब ये एक रूल था जो हमने पढ़ा है related to the degrees.
एडजेक्टिव्स में डिग्री होती है, दी के केस में क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है। 3 डिग्रीज आर देयर, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जब डिग्रीज में आ गया, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, दी के साथ मोस्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे मोस्ट है, यहाँ पे मोर है, कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है, अगेन दिस इज गिवन द पॉजिटिव डिग्री। सो यू विल गेट कंफ्यूज कि हम सीधा इंप्रेसिव लगा देंगे, बट दिस इज अ रॉन्ग वे टू डिकोड। क्या आना चाहिए, ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स Maria's qualifications were the most impressive, right? So the most relatable. तो ऑप्शन क्या आ गया, 6 का A ऑप्शन। Let's go with the 7th one. Select the most appropriate option to fill in the blanks. अब फिर से हमें वही चीज को जज करना है। D आ गया तो मैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे क्या आएगा, अगर दोनों साइड्स पे याद रख लो, कॉमा लगा के 2 चीजें पूछी जाती हैं तो many a times हमें सेम डिग्री को यूज करना होता है। This is also a degree of adjectives. Among all the runners, John was the dash, finishing the race in dash time. So देखते क्या आएगा, अब यहाँ पे तो फर्स्ट आ जाएगा, among all the runners, John was the fastest. अब John क्या था, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट था, तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। फिनिशिंग द रेस इन डैश टाइम, फिनिशिंग द रेस इन लेस टाइम नहीं, अगर आगे सुपरलेटिव डिग्री है तो पीछे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये रूल याद रख लो। अगर आ जाता है जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, हायर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, चाहे वो द के साथ लगी है एक प्रोवर्बियल स्टेटमेंट की तरफ, तो पीछे भी क्या आया, द कूलर, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री आई। तो यहाँ तो दोनों साइड्स पे क्या आएगी, कंपैरेटिव आएगी, अगर दोनों साइड्स पे सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव आएगी। दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द रूल्स ऑफ इंग्लिश, जो ऑलरेडी मैं आपको 101 रूल्स की सेपरेट वीडियो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स, भाई वो वीडियो, वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 30-40 रूल्स तो आपके मगअप करने वाले हैं, जो आपको अल्टीमेटली किसी ना किसी वे में क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, तो उसको जरूर याद करना। दैट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रिक एंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। तो इसका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आरसी। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आरसी में बेस्ड थे। आरसी टेक्स द मोस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग इट आउट। अब इसको पढ़ते हैं हम, ये यहाँ तो वीडियो पॉज करके इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना, खुद से क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस आर नेवर टफ ऑफ आरसीज, थोड़ा आपको पैराग्राफ इलॉबरेटिव दिया जाता है जस्ट टू मेक अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन इन योर माइंड्स। द एप्लीकेशन ऑफ AI in education varies enormously across countries, usually fleeting already existing disparities in technological infrastructure, funding, policy support, डिजिटल लिटरेसी लेवल्स। अब वो क्या कह रहा है, यूसेज ऑफ AI है ना जो एजुकेशन में, बहुत ज़्यादा वेरी करता है डिफरेंट कंट्रीज में। यूजली क्या कर रहा है, जैसे जैसे फ्लीटिंग, इट इज़ नॉट फ्लिरटिंग, इट इज़ फ्लीटिंग, राइट। फ्लीटिंग मतलब तेज़ी से भागना। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या है, एक डिफरेंसेस हैं लेवल में इन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कंपेयर करूंगी कंट्रीज को, तो भाई बहुत डिफरेंस है, फंडिंग में डिफरेंस है, पॉलिसीज में डिफरेंट है, डिजिटल लिटरेसी लेवल्स में डिफरेंट है। डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज कैन रिलाई ऑन मोर रॉबस्ट टेक्नोलॉजी, भाई ये तो है ही। जो ज़्यादा अच्छी कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर सकती हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज वेल एज एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन दैट इंक्लूड्स द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज देयर प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. This ecosystem is supporting schools and universities in leading experiments with AI in education. तो obviously ये सारा ecosystem schools और universities को बहुत ज़्यादा support कर रहा है, बहुत different experiments conduct कर पा रहे हैं education से related, AI के related. However, this is not the case in the global south and broadly speaking in developing countries, as they are grappling with fundamental challenges related to the basic prerequisites to make technology functional to quality education from infra to electricity. तो ये बोल रहे हैं कि भाई this is not the case. अब ये तो एक साइड में हम कंपेयर करके बोल रहे हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनके केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको फंडामेंटल जो चीज़ें मिली हुई हैं, उनको इंफ्रा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो सारे इश्यूज हैं हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप कंट्रीज के पास तो बहुत ज़्यादा इंफ्रा अच्छा है, जिससे वो और एडवांसमेंट्स करते आ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, रिसर्च करते आ रहे हैं। Against this backdrop, I see two main priorities to make technology deliver on its own long-lasting promise of leapfrogging for all. अब leapfrogging क्या होता है?
लीप फ्रॉग, फ्रॉग होता है जैसे भाग एक जगह से दूसरी जगह फटाफट वो भागता है ना, सो दैट इज बाईपास करना, मतलब जल्दी जल्दी से ना आगे आगे स्टेप्स की तरफ बाईपास होता है। जैसे मैं एक छलांग मारी, दूसरी छलांग मारी, तो आई एम कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉर ऑल। First, it's about ensuring that investments can actually close the existing digital divide in terms of connectivity, content, and capacity. More than half of the world is still offline, while the other half is developing the future generation of AI tools through an unprecedented investment from public and private sectors. अब ये तो पता ही है, बहुत ज़्यादा दुनिया अभी भी ऑफलाइन में ही बैठी है, वो रिलाई नहीं करती है ऑनलाइन में. On the other side, human capacities will be decisive to steer the technological revolution. Therefore, digital skills for teachers and learners should be prioritized in curriculum development, and digital literacy must be the part of core competencies all citizens should have in the future, regardless of age, level of education and social position. तो basically कहना चाह रहे हैं कि जो स्किल्स हैं वो टीचर्स में भी लर्नर्स में भी प्रायोरिटाइज करने चाहिए, ताकि हम करिकुलम को अच्छे से डेवलप कर सकें, और ये उनकी एज, एजुकेशन, सोशल पोजीशन के इररिस्पेक्टिव होना चाहिए. सेकेंड, वी मस्ट फोकस ऑन इंक्लूजन. अब ये वर्ड्स जो आते हैं ना आरसीज में, ये याद करा करो, क्योंकि आगे जब आरसीज करोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी. दैट इज माई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द आरसी इन अ वेरी यू कैन से एलैबोरेटिव फॉर्मेट. इंक्लूजन, सबको इंक्लूड करना. जैसे अगर कोई क्लास है, मैं टीच कर रही हूँ, maybe I am teaching irrespective of there is a girl, there is a boy, maybe there is a person who is physically not normal and physically normal. तो मतलब I am including everyone in my class. that is जो policies education की बनी हैं इंडिया में, तो वो inclusive education को promote करती हैं. A blind student can read with a normal student in terms of physical you can say disparities. किसी में है, किसी में नहीं है, तो कुछ abnormalities के साथ हमें accept करना है, because there is equality for everyone. तो inclusion मतलब सबको इंक्लूड करना, चाहे कोई एज में बड़ा है, छोटा है, गर्ल है, बॉय है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेस. तो इंक्लूसिव टर्म इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज at UNESCO, we are working to ensure that AI technology will improve educational opportunities for all and help close rather than widen the existing divides. मतलब AI क्या करेगी, वो तो सबको पास में लाएगी और सबको एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करेगी. While technology is not neutral, as already mentioned, decision making is and will always remain responsibility as humankind. We can decide what kind of future we want, and this requires a radical change in our relationship with nature, technology, and each other. When it comes to technology, including generative AI, we can decide to unlock the potential, getting more serious on ethics, safety, and inclusion, or trying to protect us and our future from technology, banning and trying to buy time. Without a doubt, AI presents innovative opportunities to enrich and transform educational experiences. But as we do this, it will be crucial to prioritize ethical considerations and preservation of education as a human and social and human-centered endeavor. In other words, it's a question of finding the right balance between the blind fantasism and absolute inaction, and I'm cautiously optimistic about it. So basically, they are trying to provide the kind of barriers to developing or not developed countries में है, but AI कैसे specialize करेगा, education में कैसे help होगी, कैसे लोग सब मिलाएंगे, तो कुछ आपको ideas I hope clarity होगी, but rest obviously you have to pause the video, you have to go through the documentation, the RCs on your own, and in case of any doubts, please pop up in the comments. I'll be explaining you in a more elaborative way. We have more PYQs to be explained here. Now, what does the passage suggest about the future relationship between technology and education? अच्छा, passage क्या बोलता है? Education should avoid using technology altogether? नहीं तो, ये तो नहीं बोला. Technology should cautiously integrated into education, की technology को बड़े ध्यान से लाना चाहिए education में. I think we need to understand this. शायद education and technology should remain separate? बिल्कुल भी नहीं. Technology will replace traditional educational methods? बिल्कुल भी नहीं. So these are complete no's and B is a complete yes. So technology should be cautiously integrated into education system. Next आ रहा है आपका question, that is which of the following is a synonym of disparities? अब मैंने पहले ही explain कर दिया था आपको. disparities का मतलब क्या होता है? थोड़ी दूरी, थोड़ा क्या है, difference है. agreements नहीं हो सकता positive है, equivalent भी is also positive, similarities also जिसकी resemblance है positive, differences is a word. so 9th का क्या आ गया? B option आ गया आपके पास. Let's go with the next one. Question 10. According to the passage, what is the main priority for making technology deliver on its promise of leapfrogging for all? तो leapfrogging का मतलब क्या था? फटाफट एक से steps को move करते करते आगे बढ़ते जाना. Increasing private investment in technology, enhancing digital divide for teachers and learners,
digital skills, developing new AI tools for education, ensuring equal access to physical infrastructure. मुझे तो लगता है कि physical infrastructure की कोई बात हुई थी, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि AI tools को नए नए डेवलप करने की बात हुई थी. प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, मुझे तो लग रहा है ये बात जरूर हुई थी कि हमें डिजिटल स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए टीचर्स और लर्नर्स में. तो अब देखो कई बार तो आप ऑप्शंस के बेसिस पे कंप्लीटली डिकोड कर सकते हो. लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11. व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द मैसेज. अच्छा, टाइटल ढूंढना है. रोल ऑफ यूनेस्को, ये तो बहुत छोटा सा था. चैलेंजेस, ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड एंड एआई एजुकेशन, एआई एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. ज्यादा बातें तो इसमें एजुकेशन सेक्टर की ही हुई हैं, क्योंकि एजुकेशन, टीचर्स, लर्नर्स, तो सारा क्या आएगा, बी पार्ट आ जाएगा इसमें हमारा आंसर. अब नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. थीम क्या है मेन इस पैसेज की. पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन ग्लोबली, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एआई डेवलपमेंट, disparity in technological infrastructure between developed and developed countries, and the D is the importance of ethics in technological advancements. अब यहाँ पे क्या लग रहा है, थीम क्या है. डिस्पैरिटीज तो थोड़ा डिस्कस ही हुआ था, प्राइवेट सेक्टर एआई नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स नहीं, तो पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन के रिलेटेड ही आया है, तो 12th का भी आ जाएगा बी ऑप्शन. अब 13th, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ईडियम. दैट इज द कंपनीज डिसीजन टू कट प्राइसेस हैड अ स्नोबॉल इफेक्ट. अब पता है स्नोबॉल क्या होता है. दैट इज कोई चीज है वो बढ़ती जा रही है, दैट इज टर्म्ड एज स्नोबॉल इफेक्ट. मतलब स्नोबॉल होती है ना, जैसे आइस की बॉल है, वो जैसे जैसे घूमती रहती है, वो और स्नो को इकट्ठा करती रहती है, और स्नो को इकट्ठा करती रहती है, और बहुत बड़ी बन जाती है. अब देखो हर वर्ड को डिकोड करना आ गया अगर इंग्लिश में, तो ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स विल नेवर बी अ प्रॉब्लम टू यू. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द कंसेप्ट और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लो. अब स्नोबॉल इफेक्ट है, एन इमेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अ वेरी स्ट्रेंज इफेक्ट, a significant impact, a situation in which something increases in sizes at faster and faster rate. तो मैंने बोला इंक्रीज होना, तो डी ऑप्शन आ गया इसमें. अब ये देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब हमने ओपोजिट फाइंड करना है. जो हरीश साइकोफाइटिक बिहेवियर टुवर्ड्स द बॉस वाज एविडेंट. अब साइकोफाइटिक पता कौन सा होता है पर्सन, जो एक तरह का आप बोल सकते हैं किसी को बहुत ज़्यादा फ्लैटर करने की कोशिश करता है. इफ आई से इट आउट कि मैं तुम्हारी तारीफ करती जा रही हूँ ओनली बिकॉज तुम मुझसे हायर पोजीशन पे हो और मुझे तुमसे काम लेना है. दैट इज साइकोफैटिक. ठीक है, मतलब किसी को बटर करना, फ्लैटर करना, टू गेट द वर्क डन फ्रॉम हिम, एंड ओनली दैट पर्सन शुड बी हायर एन अथॉरिटी. तो ये 3 पार्ट्स हैं जो साइकोफेंटिक को आपको समझना है. द पर्सन इज सुप्रीम टू यू, ही कैन गिव यू सम काइंड ऑफ अ फेवर एंड यू आर फ्लैटरिंग टू हिम टू गेट दैट फेवर फ्रॉम दैट पर्सन. दैट इज साइकोफेंटिक बिहेवियर. अब ये तो आ गया किसी की चापलूसी करना, एक तरह का ये वर्ड आ गया तुम्हारे पास. अब एंटोनिम क्या है, एक है सेल्फ सेंटर्ड, मतलब सेल्फ सेंटर्ड तो हो गया भाई अपने ही चीज़ों में है ना, प्री ऑक्युपाइड, कि मैं सिर्फ अपना ही सोचूंगा. असेंट्रिक हो गया कोई चीज़ है जो एबनॉर्मल है, अनकन्वेंशनल है, ठीक है, या डिफरेंट है, मतलब आप बोल सकते हो कोई चीज़ जो नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं की जाती, दैट इज असेंट्रिक. सर्वाइल क्या हो गया, किसी को बार बार चापलूसी करना, वही चीज़ हो गया. और ऑटोक्रेटिक क्या हो गया, दैट इज कि जो रूलर कहता है कि मेरे पास ही सारी की सारी पावर है, दैट इज टर्म्ड एज ऑटोक्रेटिक. तो इसका ऑप्शन जो सबसे नियर आ जाता है, सी असेंट्रिक तो हो गया, अब नॉर्मल हम वो नहीं कर सकते, डिफरेंट ही आ गया. सर्वाइल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हो गया प्लीज करना, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. ए और सी में डिफरेंस है, ए और सी में भी क्या डिफरेंस है. हरीश साइकोफेंटिक बिहेवियर टुवर्ड्स अ बॉस. साइकोफेंटिक होता है किसी के लिए, मतलब एक होता है दूसरे के लिए चापलूसी करना, तो दूसरे के लिए नहीं करना, तो मेरे पास ही पावर है, पावर वहां पे किसी और के पास थी, यहाँ पे मेरे पास पावर है, तो क्या आ जाएगा ऑटोक्रेटिक, जिसमें द कंप्लीट पावर इज विद द पर्सन. ये आ गया ऑपोजिट सी. तो नियर सिनोनिमस में बनता है आपका. 15th, select the option that can be used as a one word substitution. A large scale departure of people, मतलब लोग क्या है जा रहे हैं वहां से और बहुत लार्ज स्केल में जा रहे हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा. अब आइडलनेस क्या होता है, लेजीनेस होता है. एक्सोडस होता है, एक्स मतलब वो चले गए, पुराने हो गए हैं. राइवल आ रहे हैं. इमोबिलिटी मतलब वो वहां से मूव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेजी हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं. बच्चा कौन सा वर्ड, एक्सोडस. और एक्सोडस क्या वर्ड आ गया, एक्स मतलब चले गए हैं वहां से, तो मास डिपार्चर ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज एक्सोडस. 16th अगेन जंबल्ड है हमारे पास. अब उसी तरह से डिकोड करने की कोशिश करो. पीपल इन मार्को का इट इज
thousands of people in Spain on the island of this, right? अब तुमने सबसे पहले देखना है कि क्या हिंट बन रही है. अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट, राइट? तो सबसे पहले ये तो कभी नहीं बनेगा. पीपन एंड मालोका मतलब इससे पहले कोई ना कोई चीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी होगी, राइट? तो मुझे लगता है कि ये जो आएगा ना डी, ये ए के बाद ही आएगा, राइट? मतलब ए पहले आएगा और डी उसके बाद में आएगा. तो ए और डी तो इकट्ठे ही हो गए क्योंकि मालोरसा एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मालोरसा, तो ये इकट्ठा हो गया, राइट? अब आ जाता है अगर हम स्टार्टिंग, तो हमारे पास स्टार्टिंग यहाँ तो ऑन द आइलैंड ऑफ मालोरसा बनेगी 10,000 पीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. तो 10,000 पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन स्पेन. तो बी सबसे पहला स्टार्टिंग आ जाएगा. एक तो नाउन भी हमारे पास आ गया. तो बी से देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है. तो तुम्हें और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. बाकी यू कैन मेक अ लिंकेज. कैसे बन रहा है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ गए पहले इन स्पेन आर प्रोटेस्टिंग मास टूरिज्म. फिर आ जाएगा दैट यस ऑन द आइलैंड ऑफ इट 10,000 पीपल टुक टू स्ट्रीट्स. कैसे बैनर, अब यहाँ पे था प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? ये चीज़ आ जाती है. फिर वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत एंग्री है और ये इम्पॉसिबल बन रहा है वहाँ पे हाउस लेना बिकॉज ऑफ द टूरिज्म. तो ये सर आ गया आपके पास 4 जो है ऑप्शंस में से बी फिट्स इन. द लास्ट आ जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? द डैश माउंटेन द रीजन ऑफर्स डैश व्यूज ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप. अब क्या आ जाएगा, माउंटेन है, बहुत अच्छा व्यू देगा. तो यहाँ पे एवरेस्ट माउंटेन नहीं, ऑफन माउंटेन नहीं, पीसफुली माउंटेन होता है, मुझे तो नहीं लगता पीसफुली माउंटेन होता है. हाईएस्ट माउंटेन जरूर होता है, हाईएस्ट माउंटेन है और ब्रेड टेकिंग व्यू करता है. तो ए ऑप्शन इज अ फाइन वन. नाउ सी, these were the kind of questions that were asked in last year of HPCL paper related to mechanical, and I'm 100% sure if you prepare really good you can score 17 out of 17 in this portion of your paper. So give your best. कोई भी portion में doubt है you can drop up in the comment section. I wouldn't say it is a tough paper at all, बिकॉज अगर आप डिकोड करना सीख लेते हो, रूल्स को अप्लाई करते हो, सिर्फ आरसीज को थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि द पर्सन कैन मेक अ मिस्टेक जिनको वो कैब में प्रॉब्लम है, ओनली दोज पीपल. अदरवाइज बाकी पेपर बहुत सिंपल था. सो गिव योर बेस्ट और अच्छे से PYQs को करके जाओ बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन विटनेस कि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं एंड ऑल्सो कुछ ऑप्शंस में से नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं. तो हर ऑप्शन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करके जाना. So all the very best and take care, Hannah. Have a good day and I'll meet you soon while explanation of the next of the PYQ. All the best, take care and have a good day.